So hi viewers, in this particular podcast we've had a word with IPMAT Indore topper Arpan. He was our student in 2026 batch and he has cleared IIM Indore, Shillong and Ranchi, and he was a JEE aspirant prepared for IPMAT in last 3 to 4 months and cracked the exam in his very first attempt. So in this particular podcast you'll get to know how he prepared, what was his daily routine, how he backed himself up for IPMAT and finally cracked the exam. So enjoy the podcast, and if you want more such videos, subscribe to the Iconda channel. So hi Arpan, congratulations on clearing almost all the top IPM colleges this year. You've converted IIM Indore, Shillong and Ranchi, right? Yes. So Arpan, before we begin, before we start inspiring all the junior students, can you please tell a bit about yourself? So hey everyone, my name is Arpan. I am from Delhi. I took PCM for my 12th. I got 90.8% in both 10th and 12th grade. I gave the IP Math this year, and as sir told, I converted both, all three, Indore, Ranchi and Shillong. Okay, Arpan, so you told me that you've only written IPMAT Indore this year, right? Yes. Didn't you think about a backup? आपने backup के बारे में नहीं सोचा कि JIPMAT रोहतक भी लिख लेते हैं? सर अगर मैं सच बोलूँ तो IP Math Indore was almost like an experiment for me. मैं देखना चाहता था कि मैं क्या कर सकता हूँ इसमें. तो I was like, अगर इस साल नहीं हुआ तो next year I'll give all three of them. But by God's grace या फिर जो भी कहे हो गए तीनों. With your hard work. Okay, so Arpan, tell us कि आपने अपनी preparation कब शुरू करी, कितना time आपने prepare किया था, and tell us a bit about your journey. सो सर एक्चुअली IP Math के बारे में मुझे काफ़ी लेट पता चला था. जब मैं 12th में था, लाइक लास्ट ईयर अराउंड जुलाई मुझे पता चला था IP Math के बारे में. सो बीइंग अ PCM स्टूडेंट इट वाज लाइक मैंडेटरी फॉर मी टू प्रिपेयर फॉर JEE. Right. बट अगर मैं सच बोलूँ, आई वाज नेवर इंटरेस्टेड इन डूइंग BTech. सो व्हेन आई हर्ड अबाउट IP Math, मैं घर आया, आई लाइक डिड सम रिसर्च अबाउट द करिकुलम. मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि अपार्ट फ्रॉम मैनेजमेंट हम काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, लाइक लैंग्वेजेस एंड व्हाट नॉट. Right. So it's like let's give it a try. Feb नहीं, फिर उसके बाद पूरा साल चला. फिर अराउंड Feb जब हमारे बोर्ड स्टार्ट होने वाले थे, I was like अब तो करना पड़ेगा कुछ. तो I had the whole curriculum with me, like preparation के लिए. So Feb में I made a plan कि like ये करेंगे. And then I started in Feb, March, April. 3 महीने प्रेप करा मैंने जितना मैं कर सकता था. And मई में एग्जाम दिया and हो गया वो. Okay, so Arpan, जैसे आप JEE स्टूडेंट हो, आपने JEE के लिए भी कुछ टाइम तो प्रिपेयर करा ही है. When JEE students step into IPMAT preparation, some things feel easy and some feels very difficult, right? Usually for PCM students, maths is not that difficult, but English is a problem for them, right? The verbal ability section. So what was your take on verbal ability? Did you face any difficulty? So sir, honestly, जब मैंने देखा कि like VA section है, so I underestimated it a lot. I was like, हो जाएगा ये. But then when I started to give the mocks, that gave me reality actually. नहीं, this is not school English. I have to give some like dedicated time to it. Right. After that, I like started attending classes, seeing the resources, and like जब उसके लिए dedicated practice करने लगा, उसके बाद like it became much easier for me than before. Okay. So Arpan, there's one more question that all the aspirants have when they start their preparation कि सर डेली कितना टाइम देना चाहिए. और मैं तो ऑनेस्टली थक गया हूँ इसका आंसर करते करते कि प्लीज़ अपने आवर्स मत काउंट करो, आप उसको एक तरीके से टेंजिबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस में डिवाइड करो कि भाई मेरे को इतने क्वांट के क्वेश्चन करने, इतना वर्बल करना है, या मुझे आज सिर्फ क्वांट करना है, वर्बल करना है. हाउ वर यू प्रैक्टिसिंग ऑन अ डेली बेसिस? वर यू ऑल्सो काउंटिंग आवर्स या फिर आप उसको एक टास्क बेस्ड डे अपना रखते थे? सो सर जैसे मैंने कहा, मैंने काफ़ी लेट शुरू करा था, तो ऑब्वियसली समवन हु स्टार्टेड अर्ली वो लाइक दिन का कम पढ़ सकता है क्योंकि उसके पास है उतना टाइम. राइट. बट बिकॉज आई स्टार्टेड लेट, आई हैड टू गिव अ बिट मोर टाइम टू इट. बट जैसे आपने कहा, इंस्टेड ऑफ लाइक काउंटिंग द आवर्स, आई वाज काउंटिंग द कंटेंट आई वाज लाइक डूइंग, आई वाज प्रैक्टिसिंग. सो लाइक एक रात पहले आई यूज्ड टू लाइक सिट डाउन, आई यूज्ड टू सी कि क्या क्या बचा हुआ है. एंड देन मैं देखता था क्वेश्चंस किस तरह के, अगर वो हार्ड है ज़्यादा तो मैं थोड़े कम रखता था, अगर वो आसान है तो मैं ज़्यादा क्वेश्चंस करता था. Great, great. So those who are watching this podcast and have watched the previous ones as well, the last student Shravan Kumar who came to the podcast, he also mentioned this कि मैं अगले दिन की preparation उसकी पहली रात को कर लेता था. Next day I was working upon execution, and this guy has given a very good point कि अगर मेरे क्वेश्चन easy पार्ट के होते थे तो मैं ज़्यादा क्वेश्चन करता था, और हार्ड होते थे क्योंकि आउटपुट सेम होता है, राइट? अगर आप 10 बहुत अच्छे क्वेश्चन करते हो, दैट इज इक्वल टू 20 इजी क्वेश्चंस, इजंट इट? सो यू कैन डू लाइक दैट. ओके, ऐसा नहीं कि 10 आज अगर 20 हार्ड करने हैं तो कल 20 इजी करने हैं. इजी का नंबर कैन बी मोर, हार्ड का कैन बी स्लाइटली लेसर, राइट? ओके अर्पन, तो जैसे आपने लेट प्रिपरेशन शुरू करी, बहुत प्रेशर आया होगा एक बार कि इतना सारा सिलेबस है, इतने सारे टॉपिक्स हैं.
कैसे कवर होगा, राइट? दैट वुड हैव बीन अ प्रेशर ऑन आप, क्योंकि जस्ट 12th के बाद क्लियर कर रहे हो, बोर्ड्स भी थे, राइट? सो हाउ डिड यू मैनेज ऑल दैट? आप साइकोलॉजिकली कैसे इससे डील कर रहे थे? बिकॉज एक्चुअल चीज़ें करने से पहले हमारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए. व्हाट वाज योर माइंड मैप अबाउट दिस? सो सर क्या था कि साथ में एक तो बोर्ड्स थे, तो बोर्ड्स के लिए पढ़ना तो है ही, क्योंकि अगर बोर्ड्स नहीं हो तो डांट तो पड़ेगी घर पे. तो आई यूज्ड टू लाइक सेपरेट माय डे इनटू 2 पार्ट्स. एक आईपी मैट प्रेप होगा, एक पार्ट में बोर्ड के लिए पढ़ूंगा. ठीक है. तो यू कैन कॉल मी नाइट आउल और लाइक वेरी अर्ली पर्सन, बट मैं मोस्टली रात में ही काम करता था. और आई वुड डू वन थिंग, मैं बहुत सुबह उठ रहा हूँ, या तो 4-5 बजे उठ गया, 5 से 8 या 5 से 10 सिर्फ आईपी मैट, कुछ नहीं करना, और फिर लाइक 1-2 घंटे का ब्रेक लिया. बोर्ड्स के लिए पढ़ो, जो पढ़ना है पढ़ो. फिर शाम में जो तुमने सुबह पढ़ा है वो रिव्यू करो, रात में प्लान बनाओ. और जब मॉक्स का टाइम आया तो बीच में मैंने मॉक्स करना शुरू करा और शाम में उसका रिव्यू. ओके. ऑल्सो यू वर टेलिंग मी वन थिंग कि आपने बहुत रिगरसली लास्ट में मॉक्स दिए थे. सो what would be a rough number of mocks you've written this year, and how were you actually analyzing them after that? सो सर हमारे पास आई गेस पोर्टल पे अराउंड 40 मॉक्स थे आई एम इंदौर के. तो ऑब्वियसली मैं सारे तो नहीं कर पाया, बट आई डिड अराउंड 28 to 30 मॉक्स. That's still a good number. सो व्हाट आई वाज डूइंग लाइक, मैंने करा मॉक, जस्ट उसी वक्त मैं एनालाइज करने नहीं बैठा. मैं थोड़ी देर देखा मैंने स्कोर की लाइक कहाँ कहाँ गलती है. थोड़ी देर मैं बैठा, मैंने कुछ और करा, मतलब उसी का टॉपिक रिवाइज करा या ब्रेक लिया. उसके बाद फ्रेश माइंड से मैं वापस आया कि लाइक क्या क्या गलतियां हुई है देखते हैं. जो अगर मेरे को दिख रहा है कि बहुत एक टॉपिक है जो बहुत ज्यादा बार अकर हो रहा है, जिसमें बहुत गलतियां हो रही है, वो मैंने फिर से रिवाइज करा. उसके फिर से मैंने बेसिक से क्वेश्चन स्टार्ट करे. तो लाइक यही एक वे है अपने आप को इम्प्रूव करने का. आपने एक और चीज़ नोटिस करी होगी कि डाउट्स बहुत आते हैं प्रिपरेशन के टाइम पे, राइट? सो were you asking your doubts regularly? Do you think that it is very important to clear the doubts, because those are the points which are the actual hurdles for us, right? जैसे मान लो यार मैं अगर ज्योमेट्री कर रहा हूँ या मैं ट्रिग्नोमेट्री कर रहा हूँ, मेरे को कुछ पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन नहीं आया, तो क्या आप डाउट पूछते थे यार? आप सोचते थे कि यार इसको बाद में देख लेंगे, या you used to pile them up for later? लाइक या आपके पास स्टार्टिंग में तो होती मेंटालिटी कि लाइक ये नहीं हो रहा है, इसे छोड़ देते, जो आता है वो तो करूँ कम से कम. बट आई बिलीव जो तुम डाउट छोड़ोगे, क्या पता वो बाद में एग्जाम में ही आ गया, तब क्या करोगे तुम? तो द बेस्ट थिंग इज वो डाउट पूछ लो. एंड में क्या ही होगा, तुम एक बार गलत हो, क्या पता आगे जाके सही हो जाओ. तो आई थिंक डाउट आस्किंग इज वन ऑफ द मेजर पार्ट्स ऑफ प्रिपरेशन. ट्रू. एंड ऑल्सो जो हमारा इक्वांटा का ग्रुप था, लाइक वहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे जो खुद भी लाइक एस्पिरेंट्स थे, एंड ऑल्सो द मेंटोर्स देमसेल्व्स. तो लाइक तुम वहाँ डाउट पूछोगे, देयर वर मेनी पीपल हु वर विलिंग टू हेल्प यू. सो आई बिलीव दैट वाज वेरी गुड. उससे काफ़ी मदद हुई है मेरी. ओके. अर्पण, अब आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा इंटरव्यू की तरफ को. जनरली क्या होता है कि इंटरव्यूज़, क्योंकि आपने मल्टीपल इंटरव्यूज़ दिए हैं, सो हर कॉलेज का अपना अलग सिलेक्शन प्रोसेस है, राइट? कहीं पे इंटरव्यू का वेटेज ज़्यादा है, कहीं पे कम है. तो यू हैव गॉन फॉर इंदौर, रांची एंड शिलोंग, राइट? व्हाट वाज द डिफरेंस इन द इंटरव्यूज़? क्या इंटरव्यूज़ लगभग सेम थे हर जगह पे, या फिर कहीं पे बहुत रैंडम, कहीं पे बहुत एक्सपेक्टेड थे? तो सर अगर मैं सीक्वेंस से जाऊँ तो मेरा सबसे पहला इंटरव्यू था रांची का. सो जहाँ तक मैंने सुना था रांची के बारे में, इट्स मोस्टली एकेडमिक एंड थोड़ा बहुत लाइक करंट अफेयर्स के बारे में. सो आई डिड दैट पार्ट. बट व्हेन आई गो देयर, आई एम स्टैंडिंग आउटसाइड द रूम. जो लोग रूम से बाहर आ रहे हैं, दे टेल मी, एक कॉमर्स का बच्चा था, ही टेल्स मी दे आर आस्किंग अबाउट सेमीकंडक्टर्स. देन अनदर पीसीएम गाय कम्स, दे आर आस्किंग अबाउट डिमांड सप्लाई ग्राफ. आई एम लाइक okay, what are they going to ask me now? I go there, I give my intro. They start off with, can you name all the prime ministers of India in sequence? I'm like, okay. So like, obviously I don't remember all of them, I'll be really honest. So I told them like, I don't know all of them, but I can name some of them. So they're like, okay. I named like 7 to 8 of them. They were like, okay. Then they asked me about military honors. I was like, I like named all of them. Then like, can you name the recipients? I was like, no. इतना नहीं हो पाएगा. अच्छा. But apart from that, it was really good. But it was like mostly बहुत अलग चीजें पूछी थी. बहुत रैंडम इंटरव्यू था. उतना कुछ हम जनरली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई पूछेगा, but still you gave partial answers. Yes. Okay. So फिर 25 जून I guess was the date. उस दिन मेरा इंदौर और शिलोंग दोनों का इंटरव्यू था. शिलोंग was online thankfully. So सुबह I go to like the venue. I'm sitting there in the room. They called me for the interview. And Indore was mostly academic. I'll be really honest. They asked me like percentages, probability. And then they asked me about like, my home place. And they asked me to describe how the place is. Okay. So basically it was more of a conversation than an interview.
Right. Then lastly, Shillong, it was online. I attended from my home. Hmm. It was academic, but they also focused on my hobbies. So like I mentioned filmmaking in it. Hmm. So they asked me like what all types of films you have made. Was it for competitions? Do you have something right now? So yeah. Okay. So he has mentioned one very good point that interviews can be random or they can be expected at times. Okay. आपको ऐसा नहीं करना है कि आप सिर्फ academics प्रिपेयर करके जाओ. Bit of everything is asked, right? Yes. And if they put you in a stress situation like this, suppose they are randomly asking you about prime minister, as you said, semiconductor ही पूछ लिया suppose आपसे, तो you don't have to lose your cool there, right? Yeah. So maintain your composure and partially if you know the answer, tell that particular answer to them, whatever you know about it. And I would say जैसे अर्पण एक चीज़ होती है जैसे हम बच्चों को बहुत बोलते हैं कि read right when you prepare for IP Mat read. So do you think read से आपको थोड़ी सी help इंटरव्यू मिल जाती है, कुछ पार्शियल आपको पता होता है? Like yeah, reading is a like very major component because जब हम PI prep भी कर रहे थे, we had a like repository of current affairs. So I was following that rigorously. I was like seeing it every day. Right. So like हो सकता है तुमसे current affairs के बारे में पूछ ले. Like they asked me about some like business news बता दो कुछ. So like you can't be just blank there. You have to know something. So yeah, I believe reading is a major part. अच्छा, वन मोर थिंग, जैसे PCM वाले स्टूडेंट्स होते हैं, एज यू सेड कि वर्बल मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था, तो व्हाट वुड यू से कि एक्चुअली में जो गेम चेंजर होता है IP मैट के अंदर वो वर्बल होता है क्वांट होता है? सर क्वांट में क्या है ना, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे एक पॉइंट के बाद आप पैटर्न नोटिस करने लग जाओगे, आप कर लोगे क्वेश्चन. बट VAs आपको हर बार कुछ ना कुछ नया मिलेगा. यू हैव टू रीड थ्रू द होल थिंग, यू हैव टू लाइक मेक सेंस ऑफ इट and after that you like attend the questions. So I believe VA में ज़्यादा practice चाहिए and उसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा presence of mind चाहिए. तो I believe VA is the game changer in the IP MAT exam. Right. In fact, as an educator, when I teach students, I tell them कि भाई quant में क्या होता है कि आपका structure of the question can repeat. राइट क्योंकि आपको पता है कि क्वेश्चन सपोज ट्राइंगल पे है तो यू हैव टू थिंक अबाउट ट्राइंगल्स. बट व्हेन इट कम्स टू VA तो मैंने देखा है कि VA के टीचर उल्टा बोलते हैं. वो बोलते हैं बेटा जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पेपर में नहीं आएगा, है ना. ये तो हमेशा होता है कि आपको क्वांट में थोड़ा रिपीटिशन दिख सकता है, वर्बल में नहीं दिख सकता. तो ही मेंशन वेरी गुड पॉइंट कि वर्बल में हर बार नया मिलेगा. तो जितना ज़्यादा खुद को एक्सपोज करोगे अलग अलग जॉनरास से, राइट, रीडिंग, वोकैबुलरी, ग्रामर क्वेश्चंस, द मोर मॉक्स यू गिव, द मोर सेक्शंस यू गिव, दैट इम्प्रूव्स, राइट. सो अर्पण, during your preparation you have everything on your head, right, and you want to chill out for at least some time. So what were you doing to chill out yourself? तो सब मोस्टली लाइक मेरे को पता था अगर मैं फ़ोन पे लगा, अगर मैं खेलने लगा फिर तो मैं निकलने नहीं वाला. राइट. तो बिकॉज आई एम इनटू स्पोर्ट्स एंड मेरे दोस्त हैं काफ़ी सारे जो खेलते हैं, तो मोस्टली वी यूज्ड टू गो आउट, वी यूज्ड टू प्ले फॉर 1.5 hours, देन वी केम बैक. या फिर आई यूज्ड टू लाइक रीड अबाउट लाइक मेरी बहुत मतलब कह सकते थोड़ी यूनिक सी आदत है. मैं मूवी रिव्यूज पढ़ता हूँ थोड़े, मतलब मूवीज बहुत ज्यादा डेप्थ में कि लाइक उसमें क्या हो रहा है वो सब. अच्छा. तो these two, because you have that interest in filmmaking. Okay. So these two were the major things I was doing to like time pass, or you can take a break. ठीक है. So मतलब you were having some time in which you were having some kind of fun, right? ठीक है. During this entire preparation, Arpan, you were somebody who had taken a coaching and you were using the Iconda platform. How has your experience been? How would you rate Iconda classes? Was the course well structured for you? How do you rate doubt solving and mocks? Overall, the experience, your experience with Iconda. So, if I talk about classes, it was really well structured. Like एक topic है तो like उसी पे है वो. ऐसे नहीं कि like अभी algebra कर रहे हैं, trigo, फिर geometry. No, it was like very sequential, very structured. So that was a very good point. Like उसमें help हुई काफी like time manage करने में. फिर उसके बाद if I talk about doubt solving, the group as I mentioned before, काफी अच्छी मतलब response rate थी. Right. काफी अच्छा था वो. Then PI prep I believe was the best for me. Right. Because that was the time I talked to the mentors the most, and they were really helpful. They had like very insightful suggestions that they gave me. Yes. Yeah. Okay, and जैसे अर्पण आप कह रहे थे कि मेरा पहला इंटरव्यू था and I was completely blank. So that feels very bad, right? कि आपने एग्जाम तो क्लियर कर लिया है, इंटरव्यू कैसे होगा? And usually it's the first interview of your life और आपको पता है कि एक ही इंटरव्यू भाई, मतलब हुआ इंदौर में इंटरव्यू के थ्रू तो हुआ वरना नहीं हुआ. So how did you improve that point onwards? मतलब 5 इंटरव्यू होते होते you finally convert the 3 colleges in a row, right? And वो सारे टॉप कॉलेजेस हैं. तो इंटरव्यू स्पेसिफिकली आपने कैसे इम्प्रूव किया, कैसे प्रिपेयर किया? सो लाइक मेंटर्स गिव यू सम सजेशंस, राइट, कि ये ठीक करके आओ, वो ठीक करके आओ. How are you working upon them?
सो सर जो मेरा पहला इंटरव्यू था जैसे आपने कहा वो काफ़ी ख़राब था. लाइक आई वॉज प्रिटी ब्लैंक आफ्टर लाइक ड्यूरिंग इट. राइट. सो जो मेरे मेंटोर थे उन्होंने मेरे को कुछ सजेशंस दिए एंड वन वाज दैट स्माइल अ लिटिल, क्योंकि लाइक बहुत ज़्यादा सीरियस बैठता था उसमें. लाइक ऐसे मत देख. तो ही वाज लाइक स्माइल अ लिटिल. Okay. So over the course of 5 interviews, Right. first was I like started to like make myself more presentable. I used to smile a little more. Secondly, उन्होंने कहा कि academics is good, but the way you present it, you have to like better it. Okay. Like you know the concept, but the way you are telling it, maybe they won't like that. So like improve on it. So that was another thing. Okay, so he mentioned very small details, but they have a lot of impact on your performance, right? Like smiling. So you have to keep a smile, not too much, but good enough, I would say, right? ठीक है. So Arpan, coming to tips that you would give to juniors. Every year there are so many aspirants preparing, okay? If you want to inspire them, what is one thing that you would want to say to them? So first of all, time is not a issue. You start early, you start late. It depends that you need to start first. Secondly, consistency is everything. If you're consistent, you will reach somewhere. If you're not consistent but you're hardworking, maybe you can, but if you're consistent, you will get what you want to achieve. So Arpan, most of the students who are preparing for IPMAT, they believe that IPMAT is a difficult exam and you have to devote 6-7 hours to it. तो आपके हिसाब से कितना आइडियल टाइम होता है डेली प्रिपरेशन करने के लिए? What was your daily routine? तो सर ऑब्वियसली जो मेरे लिए वैलिड है वो ऑब्वियसली सबके लिए तो नहीं होगा, पर इन माय ओपिनियन इट इज़ अ डूएबल एग्जाम. इट्स नॉट लाइक तुम कर ही नहीं पाओगे. इट्स डूएबल, वेरी डूएबल. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, मैं सुबह उठता था. आई यूज्ड टू वेक अप वेरी अर्ली ताकि मेरा टाइम बचे थोड़ा बीच में. सो आई यूज्ड टू वेक अप अराउंड 4 to 5. वहाँ से मैंने 8-9 बजे तक पढ़ा मतलब नो क्वेश्चंस, सिर्फ पढ़ा है मैंने सिर्फ IPMAT के लिए. देन आई टुक अ ब्रेक 1 घंटे का समथिंग, खाना खाया, ब्रेक लिया, उठा, सिर्फ बोर्ड्स के लिए पढ़ो. फिर फिजिक्स, केम, मैथ, CS जो भी है वो सब पढ़ो. IPMAT के बारे में सोचो ही मत. जब तुम बोर्ड्स पढ़ रहे हो IPMAट मत सोचो, IPMAट पढ़ रहे हो बोर्ड्स मत सोचो. फिर शाम हुई, शाम में थोड़ा बाहर गया या कुछ करा, वापस आया, फिर से IPMAट पे फोकस. सुबह जो पढ़ा है रिव्यू करो, थोड़े बहुत क्वेश्चंस करो, फिर रात में बनाओ प्लान कि कल क्या करना है, इतने क्वेश्चंस करने हैं, ये टॉपिक करना है, क्या करना है. Okay. So Arpan, there's one thing that everybody would want to know कि आपने specifically IPMAT इंदौर ही क्यों टारगेट किया? Why not रोहतक एंड जिपमैट? सर देखिए, नो ऑफेंस टू रोहतक एंड जिपमैट, बट अगर मैं स्टार्टिंग से ही सोच लूँ कि मुझसे इंदौर नहीं होगा, आई नीड टू हैव बैकअप्स लाइक रोहतक एंड जिपमैट. सो द मेंटल स्टेट, तुम पहले ही सोच लो कि तुम नहीं होगा तो नहीं होगा वो. सो आई वाज लाइक इंदौर पे ही फोकस करते हैं. फिर मैंने लाइक मॉक्स वॉक्स भी दिए, तो आई वाज लाइक ठीक है इंदौर हो जाएगा शायद. तो मैंने पूरा का पूरा फोकस उसी पे दिया इंस्टेड ऑफ लाइक 3 वे बांटना उसे. क्योंकि अगर इंदौर में लेट्स से अगर इंदौर नहीं भी होता, आई हैव शिलोंग, आई हैव रांची, सो आई हैव गुड लाइक बैक ऑप्शंस देयर आल्सो. True. So Arpan, you are the perfect candidate to whom I should ask JEE versus IPMAT. Why did you go for IPMAT when you were preparing for JEE? सर JEE और IPMAT बोथ आर डिफिकल्ट. आई मीन ऑल रिस्पेक्ट्स टू JEE, वो है काफ़ी हार्ड है वो, but IPMAT is not a cakewalk. You have to put in the hours there also. Right. But in my case, I think I was more leaning towards a less stressful place. So I believe IPMAT was the better choice. And वैसे भी like after engineering, I was thinking of going to NIM. So I believe IPMAT से मैं starting में ही IIM में चला गया. So like I believe that was even better for me. And for the JEE aspirants, अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हें एक बहुत अच्छा backup option चाहिए, IPMAT is the best for you. Like really. So Arpan, it was really nice talking to you. You gave away some very good tips and your experiences. Is there something that you want to finally say to the aspirants who are preparing next year? Work hard, work hard, work hard. और end में भाई करो अपने मन की. Okay, thank you so much for watching the podcast, and we'll come up with more toppers in future. Do follow the iQuanta channel, subscribe to the channel so that you can keep getting all the updates and a lot of free materials.